Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are here with Exami Medical and we are going to go live with Dr. Waleed and we are going to dissect the recipe for his success. Exami Medical has always bring you the insights of success, the insights of different career paths and continuing our founder's inspiration and his vision of inspiring people. We are going to go on live with Dr. Waleed, the person who has won 29 gold medals in the tough journey of MBBS, and how he has got 29 gold medals, how has he planned different things in his life, what are his future goals. We are going to get it all sorted, we are going to get it all answered, and this whole interview series or this whole podcast will be aimed towards medical students and different professionals who will be interested in knowing the secrets and recipe of success. So, okay, G. So everybody knows about Dr. Waleed. Everybody knows that he has actually put Amiruddin Medical College on map, and everybody knows about how Dr. Waleed has got 29 gold medals, 29 medals of which 27 are gold and 3 are of silver. We also know that he has got top rank in each and every year in professional exams, and he has done some amazing work aside from just studying. He has done some clinical externships, and we are going to get his output about how important it is for different extracurricular activities to be incorporated along this journey. We are going to expect a lot of questions and a lot of secret recipes out of him. And now I am going to add Dr. Waleed to this conversation. So let's just start. Assalamu alaikum, Dr. Waleed. How are you? It's such an honor talking to you. Walaikum salam. How are you? It's my honor to be invited in your show. Thank you so much. Dr. Waleed, Exami has always worked on providing students inspiration. We have worked on different career paths. We have counseled a student on different opportunities. We have also worked on students who are aiming to build their portfolio for research and different things about how you can actually expand your CV. So how do you think it is important for a student of today, for a medical student of today, to actually just go out and experience different sort of flavors of medical, like research, like clinical externships, like all different things, so that his CV or her CV can stand out? What do you think about that? Well, it's very important. Unfortunately, in Pakistan, there is not much, there are no funding, and most of our professors do not appreciate research. And we are very lucky in this aspect of the field. So we should look forward to it, and they should be proper academics, and people should look forward to it. And secondly, regarding externship and observerships, government and even our principals of esteemed institutes should own the students, and they should ask the higher ups to affiliate us with other higher institutes, and like US, to let the students go towards them. Agreed, agreed. Dr. Waleed, we are so happy to have you. You have actually put Amiruddin Medical College on map. Thank you so much for your time. We are going to divide this interview into 3 sessions, basically in 3 blocks, and we are going to go further. Now we are going to start all about academic questions. Then we are going to talk about extracurricular questions, some about your personal life, a little bit about what you have done in past, and we are going to ask you about your future goals as well. So, starting with the very first block, let me tell me about how do you think that time management has helped the students like you achieved what you have achieved, and how do you think it's important for a student of today to actually be very productive with how they manage time? Because I think for you and your success, time management must have played a very crucial role in it. अच्छा, इसके अंदर बात, can I speak in Urdu? It would be more, My needs okay. uh, It's completely fine. क्योंकि
मोस्ट ऑफ द जो हमारे स्टूडेंट्स है वो पाकिस्तानी है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं उर्दू में ही बात करूँ। बिल्कुल टाइम बिल्कुल। मैनेजमेंट की अगर बात टाइम मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो इट्स द की। और हमें चाहिए कि हम जो भी स्केड्यूल अपना बनाएं, जो भी चीज हमने करनी है उसमें अपने टाइम को फोकस करें। आपने खेलना है, आपने एंजॉय करना है, देयर शुड बी अ सेपरेट टाइम फॉर इट एज वेल। क्योंकि हर वक्त पढ़ना जरूरी नहीं है, हर वक्त खेलना भी जरूरी नहीं है, और हर चीज को लेके चलना बहुत जरूरी है। और आपको पता होना चाहिए अब ये मेरा टाइम ये है और इसमें मैंने पढ़ना है, तो इट मीन्स मैंने पढ़ना है, इसमें मैंने बाकी चीजें नहीं करनी। और जब मैंने बाकी चीजें करनी है तो मैंने दिमाग जो है अपना वो सिर्फ एंजॉय करना है चीजों को, उसके अंदर सर्व करना है, rather than कि मेरे दिमाग में ये चीज चल रही हो या मैंने पढ़ना भी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली मेरे दिमाग में चलता था। लेकिन इंसान को हर तरह से लेके चलना चाहिए टाइम को। अग्रीड अग्रीड। डॉक्टर वलीद, आप मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल मैंने एक जगह पढ़ा था कि हम अगर प्रोक्रास्टिनेशन प्लान कर रहे हैं, मतलब टाइम बर्बाद करना प्लान कर रहे हैं कि हम फेसबुक पे टाइम बर्बाद करेंगे या कहीं और टाइम, मतलब यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि उस चीज को भी हम प्लान करें। तो आप अपनी जिंदगी में किस किस हद तक टाइम को प्लान करते थे कि ये मेरे प्रोक्रास्टिनेशन का टाइम है, ये मेरे स्टडी का टाइम है, इस टाइम में मैंने नोट्स रिवाइज करने हैं, एंड वी आर गोइंग टू आस्क यू वेदर यू मेड नोट्स और नॉट। और हम बहुत सारे और तरह के सवाल करेंगे, तो मुझे बताएं कि आप प्रोक्रास्टिनेशन को भी प्लान करते थे? मैं हर चीज को प्लान करने की कोशिश करता हूँ और करता था। और इवन आगे मुझे अब 3 दिन का आगे स्केड्यूल पता है कि मैंने अब कहाँ कहाँ जाना है और क्या क्या करना है। लेकिन कुछ चीजें हमारे जो है ना, हमारे बस में नहीं होती कुछ चीजें। लेकिन जरूरी है कि हर चीज को प्लान किया जाए और टाइमली मैनेज किया जाए। नहीं होती, इट्स फाइन। हकीकत दुनिया है और इसके अंदर बहुत से अनफॉर्चुनेट इवेंट्स आ जाते हैं जिनको हम नहीं अवॉइड नहीं कर सकते। तो उस लिहाज से फिर इंसान को मैनेज करना पड़ता है। लेकिन एक सोबर बंदा जो होता है वो अपने टाइम को एक इवेंटफुली और अच्छे तरीके से मैनेज करता है और उसको सर्व करता है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर वलीद, मुझे एक बात और बताएं कि फॉर एग्जांपल हम अक्सर, मैं और मेरे जैसे और बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स वो ये फेस करते हैं इश्यू कि हम लोग अक्सर जो है वो अपना प्लान बनाते हैं और हम लोग अक्सर एक टाइम का पूरा स्लॉट भी बनाते हैं कि इस वक्त हमने ये पढ़ना है, इस वक्त हमने ये पढ़ना है, मतलब यू नो ऑल ऑफ दैट। लेकिन समहाउ वो प्लान रियलिस्टिक नहीं होता। तो आप हमें कुछ ऐसी टिप्स दें, कुछ ऐसे आइडियाज दें कि जिसके थ्रू हम उस प्लान को थोड़ा रियलिस्टिक बना सकें। अच्छा, इसके लिए बेसिकली हम सबसे अपने पहले जरूरी रियलिस्टिक बना सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप रियलाइज करें कि आपका कितना पोटेंशियल है। मैं अगर एक चीज 2 घंटे में कर सकता हूँ, हो सकता है एक बच्चा हो वो 1 घंटे के अंदर वो चीज कर ले। तो आपने सबसे पहले रियलाइज किया है कि मुझे कितना टाइम चाहिए इस चीज को ग्रैस्प करने के लिए। फिर आपने गोल ये अचीव करना है, सेट करना है कि मैंने ये चीज आज अचीव करनी है। तो आपको लेट से आपने ये सोचा हुआ है कि मैंने आज 3 चैप्टर्स करने हैं और मुझे एक चैप्टर में टाइम लगता है 2 घंटे। फलां को कितना टाइम लगता है इट डजेंट मैटर। आपने जितना करना है वो आपके लिए मैटर कर रहा होता है। तो आपने अब 2 घंटे लगने थे, 6 घंटे आपने अपने लिए साइड पे रख लिए। आपने जितना 6 घंटे वो मैनेज करने हैं, वो आपको पता है पूरे दिन में 1 घंटे लगाने हैं, आहिस्ता आहिस्ता लगाने हैं। वो आपको पता होगा, आपके माइंड को पता होगा कि यार मेरे से इकट्ठे नहीं पढ़ा जाएगा 6 घंटे। तो आप उसमें ब्रेक्स रख लोगे। अगर आपको पता होगा कि नहीं यार मैं जो हूँ बीच में डंडी मारने लग गया तो मैं फंस जाऊंगा, तो आप 6 घंटे या 3 घंटे रख लेंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आपने एक अपना एनालिसिस करना है और उसके बाद जो है ना चीजों को लेके चलना है। डॉक्टर वलीद, आप थोड़ा सा रिपीट कर देंगे? आई थिंक आपकी ऑडियो थोड़ी बफर कर रही थी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हर एक का पोटेंशियल जो होता है वो डिफरेंट होता है। हर एक को अपना अंदाजा होता है कि मैं कितने ज्यादा तरीके आराम से एक चीज को ग्रैस्प कर सकता हूँ। तो आपने उस चीज को लेके चलना है कि आपको जो अपना पोटेंशियल पता है, आपने उस लिहाज से चलना है कि लेट्स से मेरा गोल ये है कि मैंने आज 3 चैप्टर्स करने हैं और मुझे एक चैप्टर करते हुए 2 घंटे लगते हैं। तो आपने 6 घंटे अपना स्टैंडर्ड बना लिया कि मैंने ये आज 6 घंटे पढ़ना है। देन यू हैव टू सेट कि मैं 6 घंटे कंटिन्यूस पढ़ सकता हूँ, या मुझे 2 घंटे का ब्रेक चाहिए, या मुझे 3 घंटे का ब्रेक चाहिए, या मैं कंटिन्यूसली 6 घंटे ही पढ़ सकता हूँ। तो आपको अपने माइंड के हिसाब से अपने आप को एक इजी वे में रख के चीज को हैंडल करना है और वो जो गोल सेट किया है उसको अचीव जरूर करना है। और कोशिश ये करनी है कि गोल जो अचीव करना था उससे थोड़ा सा मैं आगे जाऊं। उससे फायदा क्या होगा? पॉजिटिव री होगी। आपको एक खुशी मिलेगी कि यार इससे ज्यादा मैंने अचीव कर लिया है, अब मैं कल इससे भी ज्यादा अचीव करूंगा।
चीजें बिल्डअप करने लग जाएंगी, आपको मजा भी आने लग जाएगा, आप अच्छा भी फील करोगे। और इसका ये भी एडवांटेज होगा कि खुदा ना खास्ता कोई अनसर्टेनेबल चीज आ गई है आप जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो आपके पास बैकअप प्लान जो आपने आगे रखना था वो पहले से तैयार है। आपको पता है अच्छा यार मैंने चीज कर ली हुई है, तो अब मुझे इस चीज की टेंशन नहीं है। तो इस तरह अगर प्लान करेंगे तो चीजें आसान होने लग जाएंगी। बिल्कुल ठीक डॉक्टर वली। आई थिंक द बिगेस्ट थिंग दैट द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस होल पॉइंट इज कि हम ये चीज प्लान करें कि हम थोड़ा सा आगे का थोड़ा सा ज्यादा प्लान करें ताकि वो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन बने। एंड आई सो अग्री विद यू ऑन दैट। अच्छा डॉक्टर वली, आपको अपने एम कैट का टाइम याद है? आपको याद है कि आप किस तरह के बच्चे थे और ओवर द पीरियड ऑफ 5 years ऑफ एमबीबीएस वो किस तरह बदला? वो जो वलीद था वो डॉक्टर वलीद किस तरह बना? एंड हाउ हैव दिस जर्नी बिन? टेल अस अबाउट कि हम आपने इस पूरी जर्नी में किस तरह अपने आप को चेंज किया इन अ पॉजिटिव वे, और क्या क्या चीजें आपने अपने अंदर ऑब्जर्व करी जो आपको लगा कि यार मैं तो इवॉल्व हो रहा हूँ एज अ पर्सन। सो जस्ट टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दैट। अच्छा, एम कैट में मैं इतना था ना, मुझे डर लगता था कि यार शायद मेरा एडमिशन होता है कि नहीं होता, और इस चीज का डर जैसे हर बच्चे को होता है मुझे भी था। मेरे नंबर इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे लेकिन अच्छे थे, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा सिमजी अलामा इकबाल में बड़े आराम से हो जाएगा। लेकिन सब उस टाइम मेरिट हमारा एकदम हाई हो गया, जंप कर गया था, और अमीरुद्दीन में मेरा नाम आया। तो पहले तो काफी मायूसी रही कि यार अमीरुद्दीन कौन सा है, जैसे सबको नहीं पता। अभी भी सारे बीच में एक ट्वीट आई थी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। तो वो चीज हमें भी लगा यार कौन सा अमीरुद्दीन है, कहाँ अमीरुद्दीन है। लेकिन इधर ये सुना था कि जो टीचर्स हैं वो काफी प्रायोरिटाइज करते हैं आपको, आप पे तवज्जो देते हैं, और ये चीज फील भी की। आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट में जो होता है हर बच्चे को बहुत डर लग रहा होता है यार चीजें कैसे लेके चलनी है। अभी भी बहुत से लोग मैसेजेस कर रहे थे हमारा फर्स्ट ईयर है, हमारा फर्स्ट प्रॉफ है, हमें नहीं आइडिया हमने किस तरह चीजों को लेके चलना है। तो ये डर बैठा हुआ था। लेकिन एक जो आदत बनती थी यार अब पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, मेहनत करनी है, रिजल्ट्स की तरफ देखा नहीं था उस टाइम पे। तो फिर रिजल्ट से आया तो बहुत खुशी, और वही पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आई कि यार इतना अच्छा रिजल्ट आया, अब तो मैंने ज्यादा और मेहनत करनी है। और वो आदत बनती गई बनती गई बनती गई बनती गई। तो डॉक्टर वलीद नमदार हो गए उससे से। क्वाइट इंटरेस्टिंग। बट नाउ आई टेल यू, आप सबको पता होगा कि अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज कौन सा है, बिकॉज यू हैव एक्चुअली पुट इट ऑन अ मैप एज आई सेड इट बिफोर। डॉक्टर वलीद, आप मुझे बताएं कि आप अपने जितने भी लेक्चर्स अटेंड करते थे कॉलेज में, वो आप किस तरह मेक श्योर करते थे कि लेक्चर जो है वो प्रोडक्टिव हो? फॉर एग्जाम्पल इफ आई कैन स्पीक फॉर मी एंड माई फ्रेंड्स, हम लोग 10 से 15 मिनट बाद जोन आउट हो रहे होते हैं और फिर अपने आप को दोबारा रीडायरेक्ट कर रहे होते हैं कि टीचर क्या कह रहा है। तो आप किस तरह फोकस करते थे और आप किस तरह मेक श्योर करते थे कि जितने भी आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं वो प्रोडक्टिव हों? अच्छा, इधर एक हार्ड फैक्ट है, और बात यह है कि लेक्चर्स जो होते हैं हम सिर्फ 10-15 मिनट ही सुन सकते हैं, उसके बाद हमारी जो एक अटेंशन स्पैन है वो खत्म होने लग जाता है। और मेडिसिन की ऐसी फील्ड है कि जिसके अंदर आपने मोस्टली खुद अपने आप पे रिलाई करना होता है और खुद ही पढ़ना होता है, और बहुत से स्टूडेंट्स को ये बात रियलाइज हो चुकी होगी। तो इसमें यह है कि आपने लेक्चर्स से अलावा जो हमारी डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह चल रही होती है, हर एक का डिफरेंट स्केड्यूल होता है, लेकिन यूजुअली प्रैक्टिस वगैरह सारे जो डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह होते हैं वो सारे करा रहे होते हैं, वाइवाज भी बीच में चल रहे होते हैं। तो ये जरूरी है कि जब इस तरह के इंटरेक्टिव सेशन हो ना, तो उसके अंदर पार्टिसिपेट करें और उसके लिए प्रिपेयर्ड होके आए। लेक्चर्स आपको सिर्फ एक ग्रूमिंग देते हैं, एक सेंस देते हैं कि यार एक चीज नहीं समझ आ रही तो टीचर से जाके पूछ लो। टीचर ऑब्वियसली सी बात है स्लाइड्स ही चला रहे होते हैं, हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम ऐसा है। तो उसमें थोड़ी सच्ची बातें कर रहा हूँ, लेकिन उसमें ये है कि आपने सिर्फ उसे आपने सिर्फ देखनी है कि आपको कोई अलग चीज नजर आ रही है। और यूजुअली ऐसे होता है कि अब लेट्स से फिजियोलॉजी है, उसमें गाइडन यूजुअली हम फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, वो शेरवुड की भी नोट्स वो स्लाइड्स ले आते हैं, वो गेनों की भी ले आते हैं। तो इस तरह की जब डिफरेंट आ जाती हैं आपको इस चीज का आइडिया होता है, अच्छा ये चीज इससे ली थी मैडम, हो सकता है हमसे वाइवा में भी ये सवाल पूछें। और एक अच्छा पॉइंट है, और कुछ प्रोफेसर जो होते हैं कुछ चीजों पर बहुत एम्फेसिस कर रहे होते हैं, तो आपने सिर्फ उन चीजों को जो है वो लेके चलना होता है, एक थोड़ा सा ब्रॉड ओवरव्यू लेना होता है कि यार चीजें कैसे चलनी है, दैट्स इट। बाकी लेक्चर्स का फायदा ऐसे जितना ज्यादा नहीं है, हमने सिर्फ एक ओवरव्यू लेना था, उनका काम यही है कि उन्होंने ओवरव्यू देना है। बाकी मेहनत सारी आपको पता है हमने ही करनी होती है, हमने ही पढ़ना होता है, हमने यूट्यूब पे सर्च करना होता है, हमने गूगल पे सर्च करना होता है ये चीज क्या है और इसको किस तरह लेके चलना है। बिल्कुल बिल्कुल। Dr. Wali, thank you so much. I think the biggest takeaway from this whole question is कि आप पहले से prepared होके जाते थे और आप जो है वो basically
लेक्चर को एज ए ट्यूटोरियल लेते थे या लेक्चर को एज ए समराइज्ड वर्जन लेते थे। अच्छा डॉक्टर वलीद, मुझे एक बात बताएं, फॉर एग्जांपल आप कोई नई चीज पढ़ रहे हैं तो वो किस तरह होता था? फॉर एग्जांपल आपने लॉन्ग बुक पढ़ी, फिर शॉर्ट बुक में उसको एनोटेट कर लिया, या आप नोट्स बनाते थे, और फिर वो किस तरह, मतलब आप फॉर एग्जांपल इफ यू आर लर्निंग अ न्यू चैप्टर इन पैथोलॉजी, तो आप किस तरह उस चीज को, मतलब हाउ डू यू टेक इट? अच्छा, मेरी रूटीन थी, एक थी कि सबसे पहली जो चीज पढ़नी है ना वो बिल्कुल नहीं होगी, तो उसको बिल्कुल लाइटर मोड पे, अपने दिमाग पे इतना ज्यादा बोझ नहीं डालना कि यार ये आज ही चीज पढ़ी है, आज ही समझ आ जानी चाहिए, आज ही सारा कुछ हो जाना चाहिए। और वो हम्म। जैसे कि शायद के दिल में उतर जाए मेरी बात, वो शायद के उतर जाए मेरी बात, आगे ठीक है, नहीं है तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो मैं उस तरह पढ़ता था पहली दफा, और फिर उसके अंदर मैं ओवरव्यू, वही ना, ओवरव्यू आपने ले लिया, अच्छा ये चीज इस तरह बात कर रहा है, ये इस तरह चलना है, ठीक है। और बाद एक दफा समझ ली चीजें, ग्रेस्प करने लग गया, फिर दोबारा देखा उस चीज को। अब जब दोबारा देखना होता था ना, उसमें मैंने फिर एक बुक नहीं देखनी होती थी, उसमें मैंने उस मेन बुक को देखना है, उसके साथ रिलेटेड, मैं फिजियोलॉजी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो अगर गाइडन थी तो मुझे पता था मुश्ताक फौत हो चुके हैं, बहुत बहुत बड़े उस्ताद है हमारे, मुश्ताक अहमद साहब, उनकी बायोकेमिस्ट्री की किताब है फिजियोलॉजी की, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो उन्होंने उनकी फिजियोलॉजी की, उनकी किताब को देखा, टेरवुड है उसको देखा। नॉट कि मेरे पास पूरा टेक्स्ट बुक सारी पड़ी होती थी, आप पीडीएफ खोलो, साथ देख लो एक चीज, तो जब सारी चीजें आपने फिर कोरिलेट करने लग जाता था। एंड द बिग थिंग इज कि नोट्स बनाना जरूरी नहीं है, आप एक बुक पकड़ो जो आपने हर एट द एंड ऑफ प्रॉफ पढ़नी है, वो हर एक को पता होता है कि हमने एक बुक पढ़नी है, लेट्स से गाइडेंस पढ़नी है, तो हमने गाइडेंस पढ़नी है। तो आपने क्या करना है, जो बाकी चीजों के जो भी मटेरियल वगैरह है, आप स्टिकी नोट से या साइड पे लिखना है, मेंशन कर लो, लिख लो सारा कुछ उसी के अंदर। एक आपकी बुक जो है वो इतनी प्यारी सी बन जाए कि आपको बाकी चीजें ना खोलने पड़े। और इवन अगर कोई चीज लेंथी भी है तो आप उसका मेंशन कर दो कि ये वाला पेज है, इधर जाना है जब जरूरत पड़ेगी। आपको सब कुछ आइडिया है, आपने बस एंड टाइम पे फिर ये सारा कुछ पढ़ना है, और सारी चीजें आसान हो जाती हैं। तो जरूरी है कि नोट्स अपने लिए, कुछ बच्चों को आदत है, हर एक में होता है ना, आपको हर एक अपना डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव होता है। मेरे लिए यही था कि मैं एक जो मेन बुक लेके चलनी है, उसको ही सारा कुछ जैम पैक करके उसी के अंदर सारा कुछ डाल दूं, ताकि मुझे एट द एंड ऑफ द डे ये मसला ना हो, यार मैंने ये किताब पढ़नी है, मैंने ये बुक पढ़नी है, मैंने इसको देखना है, मैंने उसी बुक को देखना है, उसी के अंदर सारा कुछ कवर कर देना है। गॉट इट, गॉट इट। अच्छा डॉक्टर वलीद, हमें ये बताएं कि आपका एक रैंडम डे किस तरह लगता था वर्सेस द डे व्हेन यू आर ऑन प्रिपरेटरी लीव, और जब आप जो है वो फॉर एग्जांपल प्रॉफ से 2-3 महीने पहले वाला जो टाइम होता है वो कैसा होता है, और एक नॉर्मल रैंडम डे मतलब वो कैसा होता है एज ए मेडिकल स्टूडेंट ऑफ कोर्स? अच्छा, स्टार्ट में तो इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता हम पे, हमें होता है कि यार स्टार्ट करना है अभी, इतना ज्यादा उसमें ये होता था कि मैं एक स्केड्यूल बना लेता था, रफ सा बनाता था, लाजमी नहीं होता था उसमें मैंने ऑबे नहीं करना उस चीज को, ना मुझे टेंशन थी, तो मुझे एक रफ सा था कि इतने दिनों में यार ये चीज करनी है, नहीं होती तो भी इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अगर हो जाएगी तो इट्स अ बोनस मेरे लिए। लेकिन बाकी मूवीज, सीजन्स, दोस्तों को टाइम देना, हमारा स्पोर्ट्स वीक आपको पता है स्टार्ट में ही आता होता है सेशन के, उस उसमें जाना, जितना जा सकता था, लाजमी नहीं था, मैं हर वक्त नहीं जाता था, लेकिन कुछ दिन मैंने मुंतखब किए हुए थे कि यार उसमें जरूर जाऊंगा मैं, लाइक क्रिकेट डे हो गया, तो उस चीज में अपने आप को इंडल्ज रखता था, ताकि एक तो इंगेज रखता था। डॉक्टर वलीद, आप थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, आपकी आवाज थोड़ी सी बफर हो रही थी। मैं ये कह रहा था कि स्टार्ट ऑफ द डे जो था उसके अंदर मेरा ये था कि मैं काफी रिलैक्स था और रिलैक्स रहता था, और मेरी रूटीन होती थी कि मैंने मूवी देखनी है या सीजन देखना है वो स्टार्ट कर देता था मैं, और इसके अलावा दोस्तों से मिलना और फैमिली को मैं कोशिश करता था टाइम दे सकूं, क्योंकि आप जो स्टार्ट में जब आते थे तो 4 महीने आपके ऐसे प्रॉफ के होते हैं जिसमें आप बिल्कुल भी किसी को टाइम नहीं दे रहे होते, तो आप भी एक प्रेशर एग्जैक्टली। डेवलप कि यार इतना मैंने अपने फैमिली से भी आउट ऑफ टच हूँ, फ्रेंड से भी हूँ, तो मैं उनको टाइम देने की कोशिश कर रहा था कि वो भी खुश हों, और एक बंदे का जो मेंटल पीस होता है जो काफी हद तक डिस्टर्ब हो चुका होता है, तो वो भी जो है ना थोड़ा रिलीफ हो। सही। अच्छा डॉक्टर वलीद, आप मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर हम एज ए स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट, डिफरेंट एडजेक्टिव्स को देखें तो उसमें से सबसे ज्यादा जो आपके साथ रेजोनेट करता है वो कौन सा है?
Do you think it's consistency, it's time management, it's about being having a sportsmanship? इन तीन एडजेक्टिव में से आपको क्या लगता है कि आपकी जो सक्सेस है वो किस चीज से ज्यादा रेजोनेट कर रही है अबाउट ऑल ऑफ दैट यू हैव अचीव्ड? अच्छा, तीनों चीजें लाजमी चाहिए, मतलब जो भी लोग सुन रहे हैं उनको पता है कि तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं, कि ये तीनों चीजें आप जबरदस्त करके आप जब लेके चलेंगे तभी ये सारा कुछ अचीव होता है। लेकिन मेरे लिए जो है वो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती थी, कि मैं कंसिस्टेंट था और मैं गिव अप नहीं करता था किसी भी लिहाज से। बंदा लो फील करता है, बहुत से टाइम ऐसे आते हैं कि यार नहीं यार बस बहुत हो गई है, और उस टाइम पे कंसिस्टेंसी थी कि यार नहीं, गिव अप नहीं करना है और इस चीज को कंटिन्यू करना है। तो ये एक चीज थी जो स्टैंड अप करती है कि यार ये चीज थी जिसने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। गॉट इट, गॉट इट। डॉक्टर वलीद, आप मुझे एक बात बताएं, आपके जितने जो सिलेबस होता था, बिकॉज एमबीबीएस का भी ऑल नो इट्स अ ह्यूमंगस सिलेबस चुका हुआ, तो आपका सिलेबस कितनी बार कवर होता था और वो आप किस तरह करते थे और आप उसको किस तरह प्लान करते थे कि मैं इस वक्त ये कर लूंगा, इस वक्त ये कर लूंगा, सो दैट कि आप चीजों को सारा एक साथ लेके चल रहे हैं, वो किस तरह होता था? उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। अच्छा, स्टार्ट में जब मैं एक रफ से जब चीजें करने लग जाता था तो एक मुझे ओवरव्यू तो मिल गया एक चीज का, और मैंने उसके लिए एक्स्ट्रा जो बुक्स पढ़नी थी वो भी मैंने साथ में स्टार्ट कर लिए हैं। तो ये आप समझ लें कि अर्ली 6 मंथ जो थे ये सारा कुछ हो चुका हुआ मेरा। अब मेरा आ गया टाइम रिवीजन का। अब रिवीजन में मैंने सिर्फ ये डिसाइड करना है कि मैंने एक चीज को कितने दिन देने हैं। लेट्स से मुझे अगर फार्मा कवर करनी है तो स्टार्ट में मुझे कितने दिन लगेंगे, मैं 10 दिन ले लूंगा लेट्स से। और फिर स्टार्ट में जब आहिस्ता आहिस्ता चीजें चलने लग जाएंगी, जब मैंने रिवीजन करनी होगी तो मैं उसमें 6 दिन लूंगा। फिर इवन कुछ ऐसे भी होते थे कि मैं अपने आप को खुद टेस्ट करता था कि मेरी क्या एबिलिटी है, कि मैं वाकई इसको 3 दिन में भी कर सकता हूँ या 2 दिन में कर सकता हूँ। तो मैं वो भी अपने आप एक्सपेरिमेंट सारे करता था, कि ताकि मैं रेडी हूँ कि किसी भी अनफॉर्चुनेट इवेंट में मैं फंस ना जाऊं और मुझे मसला ना हो। तो मैं हर लिहाज से अपने आप को प्रिपेयर करता था, और इसका फायदा ये भी होता था कि रिवीजन भी ज्यादा हो जाती थी और चीजें स्मूथली रन करती थी। गॉट इट, गॉट इट। अच्छा डॉक्टर वलीद, आप मुझे ये बताएं, हैव यू एवर इन योर होल मेडिकल लाइफ आपको कभी सेल्फ डाउट हुआ है कि मैं गलत जगह पे आ गया हूँ, कि मैं डॉक्टर तो नहीं बन सकता, या कुछ इस तरह का? मतलब बिकॉज सेल्फ डाउट अमंग मेडिकल स्टूडेंट्स इज वेरी रियल। हम बहुत इम्पोस्टर सिंड्रोम से गुजरते हैं। आप हमें बताएं कि आप गुजरे, और अगर आप गुजरे तो आपने किस तरह उसको नेविगेट किया और आप किस तरह बच के निकल आए उससे? अच्छा, ये जो है ना ना खत्म होने वाली चीज है, ये होनी ही होनी है, हर एक बच्चे के साथ होनी होनी है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर, हम जब भी प्रॉफ आता है हम ये कहते हैं हम इधर क्यों आ गया, हमें नहीं लगता हमें इधर आना चाहिए था। लेकिन उसमें एक ये चीज है कि ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए पाथ चूज किया था। हम हाँ जी। चाहे कहते हैं हमने एम आ गए या हमने खुद चूज किया, ये अल्लाह ताला की मर्जी थी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं और वो नहीं आ सके, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो हम कहते हैं कि हम एम आ गए, लेकिन अल्लाह ताला की इसमें खास रहमत है, और ये हमारी एक मेहनत है जो हमने की है, तो अल्लाह ताला ने उसका रिवॉर्ड दिया। तो इवन इवेंचुअली हमें एक अल्लाह ताला की जो उसने लिखा हमारे लिए उस पर बिलीव करना है, और दूसरा जो हमने अपनी मेहनत की है एटलीस्ट हमें उसको ऑन करना चाहिए, कि हमने जो पास में मेहनत की है हमने उसको ऑन करते हुए आगे जाके मेहनत करनी है। और हम ऐसे नहीं लोग जो एवी आ गए इधर, वी आर द क्रीम ऑफ नेशन, और इसको ना अपने दिमाग में बिठा के प्राउड फील करना चाहिए। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा डॉक्टर वलीद, हमें ये बताएं कि आप एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज में कितना इन थे अपने कॉलेज लाइफ में, और आपको क्या लगता है कि रिसर्च और सीवी बिल्डिंग और डिफरेंट जगह वॉलंटियरिंग करना ये कितना इम्पोर्टेंट है एक डॉक्टर के लिए? बिकॉज आई थिंक लॉट ऑफ इट बॉइल्स डाउन कि आप कितना इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे हो अपने पेशेंट्स के साथ, राइट? तो आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ असाइड फ्रॉम कोर मेडिकल नॉलेज व्हाट एल्स डू यू थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट जो कि एक्स्ट्रा कोकरिकुलर में होना चाहिए और आप उसमें थे और आप चाहते हैं कि हो? 3 सवाल मैंने एक अच्छा, साथ कर लिया। मैं पहले अपना बता दूं, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में सिर्फ स्पोर्ट्स में थोड़ा सा इंगेज था, बाकी चीजों में मुझे ऐसा लगता था कि मुझे नहीं अच्छी नहीं लगती, और सीनियर जो होंगे वो मेरे पे हुक्म करेंगे, मतलब मेरी एक आइडियोलॉजी थी। तो इस लिहाज से मैं काफी कंजर्वेटिव रहा। लेकिन बहुत जरूरी है, ग्रूमिंग के लिए बहुत जरूरी है, बच्चों को मैं कहूंगा कि लाजमी 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 जाएं। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं बनता, बाकी चीजों को भी अपने आप को इंगेज करें।
आपकी डिबेटिंग सोसाइटी है, आप उधर जाएं, आपकी आर्ट सोसाइटी है, जो आपको फन एक मिलता है, आप समझते हैं कि यार ये टैलेंट मेरे अंदर मेडिसिन के अलावा ये टैलेंट भी है, तो आप उसको एक्सप्लोर करें और उसमें उस सोसाइटी में जाएं। हर माशाल्लाह हमारे सारे मेडिकल कॉलेजेस में सोसाइटीज अब रहती हैं, तो जो भी आपको अच्छी लगती है आप उसमें जाएं और आप उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, और आप इंशाल्लाह ग्रूम भी करते हैं इन चीज़ों से। दूसरी बात, सीवी रिलेटेड जो बात थी उसमें ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे इधर कोई सिस्टम नहीं है जो हमें बता रहा हो कि यार आपने सीवी बनाना है, आपने बाहर जाना है, आपने मतलब बच्चों को खुद ही कोशिश करनी पड़ती है कि पूछे किसी से कि कैसे होगा। हमें मुझे भी कोई बताने वाला नहीं था कि ऐसे होना है, यार इधर जाया करो। प्रोफेसर्स और जो हमारे सीनियर्स हैं उनको इस चीज, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट दिस कि यार हमने ये करना है। अरे सीरियस बात है, मतलब हमें नहीं कोई, हम बच्चे हैं, हमें नहीं पता कि यार ये कैसी चीज होती है, एंड दे नो एवरीथिंग। तो वो उंगली पकड़ के थोड़ा बहुत चलाना तो सिखा सकते हैं हमें। तो लेकिन कुछ सीनियर्स ऐसे अच्छे होते हैं, नो डाउट, कि वो आपको बताते हैं यार कि नहीं ऐसे ही नहीं करना, इधर नहीं जाना, इधर ऐसे ही हो जाएगा तो ये इसमें फॉल्ट आ जाएगा, इधर फ्लॉज हैं, इधर नहीं, इस तरह नहीं करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया उन सीनियर्स का भी जो उन बच्चों को जो है लेके चलते हैं। और इस दुनिया को जरूरत है ऐसे लोगों की जो दूसरों का जो है सहारा बनते हैं, उनको सिखाते हैं चीजें। तो ये जरूरी भी है और सबको करना चाहिए। और एटलीस्ट कॉलेज लेवल पे ये बहुत जरूरी है कि ग्रूमिंग जो है इवन हमारे टीचर्स जो है बच्चों को ऑन करके कराए। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर वलीद, आपने पर्सनली कोई रिसर्च पब्लिश करी या आप किसी रिसर्च का हिस्सा रहे? अनफॉर्चुनेटली इस चीज में मैं लैग करता हूँ, ट्राई की थी लेकिन फिर जो है कोविड आ गया। उसके बाद फिर मैं इस चीज में इंडल्ज ही नहीं हुआ, और अभी मेरी यही कोशिश है कि रिसेंटली अब मैं कोशिश करूँ इस रिसर्च वर्क में दोबारा वापस आऊँ, क्योंकि ये जरूरी है और नंबर्स के अलावा भी बहुत जरूरी है, और ये चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए। रिसर्च इज द मेन थिंग जो आगे इंटरवेंशन लेके आएगी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। मुझे थोड़ा सा इस बात के ऊपर गाइडलाइन प्रोवाइड करें कि आपको क्यों लगता है कि ये एक ज़रूरी चीज़ है। बिकॉज हेयर एट एक्समी हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं स्टूडेंट्स की पोर्टफोलियो बिल्डिंग पे, हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं रिसर्च पे। Because as much as it's important for students to have core medical knowledge, it's also very important for them to have a research sort of mindset. And do you agree कि हमारे पास जो research sort of mindset होता है वो थोड़ा different होता है, और क्यों हमारे मेडिकल स्कूल्स में उस तरह का माइंडसेट नहीं है, और कब और किस तरह हम उस तरह का माइंडसेट डेवलप करें? आपकी भी जो आवाज कर दी थोड़ा सा रिपीट करने की क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस में यूजुअली इतना ज्यादा कल्चर नहीं है रिसर्च का। और आप मुझे ये बताएं कि आप ये कभी कह रहे थे कि रिसर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिसर्च इज गोइंग टू गिव अस अ लॉट ऑफ डिफरेंट इंटरवेंशंस, और बहुत बेहतरीन किस्म की इंटरवेंशन हमें रिसर्च के थ्रू ही मिली हैं। तो आप मुझे बताएं कि एज ए यंग मेडिकल स्टूडेंट्स हमें कितनी जरूरत है रिसर्च पढ़ने की, रिसर्च करने की, और वो एक रिसर्च वाला माइंडसेट लाने की। बिकॉज डेफिनेटली हम बहुत सारे ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, पाकिस्तान इज प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ ग्रेजुएट्स ऑफ एमबीबीएस, लेकिन हमारा जो एक रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट है वो अभी भी थोड़ा बहुत इट्स इन द शैडोज। बट व्हाई डू यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तानी मेडिकल स्टूडेंट्स टू हैव अ रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट? देखिए, आपका एक तो सीवी स्ट्रांग होना है, जो सिंपल हम जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, बाहर सारी रिसर्च चलती है, मानी जाती है, और वो दे लुक फॉरवर्ड के इस बंदे ने रिसर्चेस की हैं। तीसरी चीज ये है कि हमारे कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर जैसे बाकी चीजों की सोसाइटीज है, वैसे ही एक रिसर्च सोसाइटी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए और प्रोफेसर्स को ओन करना चाहिए। हमारे फोर्थ ईयर के अंदर कम्युनिटी मेडिसिन में हमारी एक रिसर्च का एक वो रखा होता है उन्होंने, कि आपने रिसर्च करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी ऐसे जल्दी जल्दी में चीजें की जा रही होती हैं कि वो समझ भी नहीं आ रही होती हैं और पता भी नहीं चल रहा होता, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। तो जरूरी है हर कॉलेज में, इट शुड बी मैंडेटरी कि रिसर्च सोसाइटी एग्जिस्ट करे, और एक कॉलेज अपना प्रोटोकॉल बना दे अगर यूएचएस नहीं बना रही, कि आपने रिसर्चेस देनी है, आपने कंडक्ट करवानी है, ग्रुप्स बना दें, बैचेस बना दें। और जब ये चीज इम्प्लीमेंट होने लग जाएगी, आप बच्चों को बताएंगे ना कि यार ये चीज इंपॉर्टेंट है और ये इस तरह करनी है। ओरिएंटेशन जब एक बच्चे को देंगे, हम तो बिल्कुल नहीं आए होते, हमें नहीं पता कि यार ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें तो कहते हैं भाई सबसे पास करना इंपॉर्टेंट है, हाउस जॉब में पे नहीं लगेगी, इस तरह की। तो हम तो उस टाइम भी कहते थे यार सब स्टेज बड़ी इंपॉर्टेंट है।
तो ये बच्चे का माइंडसेट आपने सेट करना है कि किस तरह लेके चलना है, और जरूरी इसमें यही है कि हमारे जो बड़े हैं वो देखें और इस चीज को लेके चलें। और इवन हम जो हैं, हमें चाहिए कि एज ए सीनियर्स इन सोसाइटीज का क्याम करें। इवन हमारे अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज में भी रिसर्च सोसाइटी है, तो वी शुड लुक फॉरवर्ड टू इट एटलीस्ट। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आई थिंक व्हाट इज द टेक अवे फ्रॉम दिस होल क्वेश्चन एंड आंसर इज कि हमें जरूरत है ऐसे मेडिकल कॉलेजेस में ऐसे स्टूडेंट्स की, ऐसे सीनियर्स की जो कि बेसिकली इफ नॉट वो करवा नहीं रहे तो कम से कम इस चीज एटलीस्ट उस चीजों का कयाम तो करवा रहे हैं या उस चीज को स्टार्ट तो करवा रहे हैं। बिकॉज वही वाली बात है ना कि एक दफा शुरू होंगी चीजें तो फिर वो थोड़ी सी रनिंग में आ जाएंगी। अच्छा डॉक्टर वली, मुझे ये बताएं कि आपके जितने भी क्लिनिकल एक्सपोजर रहा है अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज में उसका पेरेंट हॉस्पिटल के साथ, तो आपका किस तरह का रहा है मेरे एक्सपोजर? और आपको लगता है कि इलेक्टिव जरूरी हैं स्टूडेंट्स के लिए? बिकॉज इलेक्टिव्स क्या कहते हैं कि वो पेरेंट कॉलेज से हट के एक एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। तो आपको लगता है कि इलेक्टिव्स इंपॉर्टेंट हैं? और आपने खुद इलेक्टिव्स किए हैं, तो मैंने आपसे एक साथ 3 सवाल पूछ लिए हैं। अच्छा, जरूरी, सबसे पहली बात जरूरी है, डिपेंड करता है आपका कॉलेज या आपका इंस्टीट्यूट कैसा है। अगर आपको एक्सपोजर प्रॉपर मिल रहा है, गाइडेंस मिल रही है, सब कुछ करा रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ बच्चों आओ सीखो हमसे, तो हम मकसद क्या है, सीखना है, सीख लेंगे, दैट्स ओके, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सिस्टम वैसे नहीं है, बच्चों को ऑन हमारे इधर किया ही नहीं जा रहा होता। अच्छा इसके पास चले जाओ, अच्छा फलां के पास चले जाओ। कुछ होते हैं अच्छे लोग भी हैं ऑब्वियसली, कुछ टीचर्स अच्छे हैं, कुछ यूनिट्स अच्छे होते हैं। मतलब मैं अपनी बात करूं, हमारा मेडिसिन यूनिट 1 है, मेडिसिन यूनिट 2 है, 3 है, उन सब ने बुलाया। उन्होंने ऑब्वियसली एक तो हमें एक चीज है ना, हमारे दिमाग में एक चीज चल गई है कि यार हमने अटेंडेंस लगवानी है सिर्फ, और फिर हमने आ जाना है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि सीखो, और अगर हम एज अ स्टूडेंट कोशिश करें कि इस चीज को बावर करें कि यार हमने सीखना है और ये जरूरी है हमारे प्रोफेशन के लिए, फ्यूचर के लिए, तो फिर वो ज्यादा चीज एग्जिस्ट करेगी कि लोग भी सिखाना चाहेंगे। अगर हम इंटरेस्ट नहीं, हमारे एंड पे भी एक लैकिंग है कि हम इंटरेस्ट शो नहीं करते। यार प्रॉक्सी लगा बिल्कुल देना, यार अटेंडेंस अब मसला यार है, मुझे जहां पे लगता है कि लेक्चर्स शुड बी एंडेड, आप सिर्फ फेस टू फेस प्रैक्टिकली बच्चों को सिखाएं, टाइम दें, प्रॉपर दें। अब लेक्चर्स में आप कहते हैं कि ठीक है 100 बच्चा 300 बच्चा आया है, उधर टीचर बता के चला गया। इससे बेहतर है कि उस टीचर को कन्फाइन कर दिया जाए उस 2 घंटों के लिए, कि एक पेशेंट सामने रख दिया जाए और फिर उनको कहा जाए कि आप सिखाएं। अब बच्चों को 6 घंटे 8 घंटे आपने बिठा के बीच में सारा कुछ उसमें मिक्सअप कर देना है, तो बेहतर आप 2 घंटे उनको दें और उसमें उनको सब कुछ सिखा दें। और 2 घंटे बहुत ज्यादा टाइम होता है कि आपने उसके अंदर, अगर आप स्टार्ट करें, इतने पूरा साल है मेडिसिन के अंदर, हमारी जो 3 मंथ्स की एटलीस्ट रोटेशन लग रही होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारी तो इस तरह थी। तो 3 महीने के अंदर अगर एक केस अगर हम 3 दफा भी बच्चों को सिखाए ना, 2 घंटे भी दें उसको, तो बच्चा सीखने लग जाएगा और इंटरेस्ट भी डेवलप होगा यार। अच्छा एक ये बात भी है कि जब टीचर एक बता रहा होता है ना, लेट्स से मुझे लगेगा कि यार ये टीचर अच्छा है, मैं बाकियों को बताऊंगा कि यार ये टीचर अच्छा है, बाकी एक दूसरे को बताएंगे यार टीचर अच्छा है, इसके पास आना है। जब टीचर ऑन करेगा ना अपने बच्चों को और बच्चे ऑन करने लग जाएंगे अपने टीचर्स को, तो थिंग्स वुड बी वेरी हेल्पफुल। और इस तरह जो इलेक्टिव जो हमें जरूरत पड़ रही होती है कि यार बाहर जाएं ऑब्जर्वरशिप करें, तो वो जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमारा जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो मजीद अच्छा होने लग जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक इट्स अ वेरी डिटेल्ड, अ वेरी गुड आंसर के। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने रेज किया हुआ ये है कि हमारे मेंटोर्स और मेंटी के बीच में एक बेहतरीन किस्म का रिलेशनशिप होना चाहिए ताकि एक इफेक्टिव लर्निंग और इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर वलीद। नाउ वी आर गोइंग टू टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। फिर हम हमारा एक ब्लॉक ऑफ इंटरव्यू थोड़ा सा रह गया है, हम फिर उसको कवर करते हैं। सही है? अच्छा जी, तो कासिम हमसे पूछ रहे हैं, how much did you score in your MCAT and in your FSC? If you are okay with answering that. और ऐसे में यार मेरे तो कम नंबर थे, मतलब मुझे लगते हैं 1000 थे आउट ऑफ 1100, और एम कैट में मेरा 984 थे। ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारा रफीक पूछ रही हैं कि शॉर्टेज है टाइम की और सिलेबस बहुत ज्यादा लेंदी है, तो किस तरह पढ़ा जाए और किस तरह चीजों को स्प्रेड करें? इसमें यह है कि
कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो यूजुअली आइडियली हमारे 60 to 70% जो होता है वो रिपीट हो रहा होता है। अब मैं इसके अंदर पास पेपर्स का नाम लेने लग जाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा, लेकिन पास पेपर्स जरूरी है, सिंपल बात है। चाहे आप सारा कुछ पढ़ लें, लेकिन पास पेपर्स आपको एक आइडिया देते हैं कि यार क्वेश्चन किस तरह का आना है। यू नेवर नो, आपने जो तैयारी की है उस तरह का क्वेश्चन भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आपने उसको जो हमारा यूएचएस है उसके लिहाज से थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ता है चीजों को। तो आप पास पेपर जरूर करें, आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू भी मिल जाता है कि यार 70 to 80% जो है इसमें से यही चीजें आ रही हैं, तो हम इस चीज को देख लें। एग्जैक्टली। लेकिन पास पेपर सबसे एंड पे करने होते हैं, सबसे पहले नहीं करने बिल्कुल। होते पास पेपर। जब सारा कुछ कर लिए ना, फिर आपने देखना है यार अच्छा पास पेपर में ये चीजें हैं, मैंने ये देखनी है, और उधर ही मार्क कर दें जो बुक है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपको आइडिया हो जाएगा यार इसको प्राइम इंपॉर्टेंस देनी है, बाकी को थोड़ा सा चलो कम भी दे दूंगा तो ठीक रहेगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा डॉक्टर भाई ये बताइए कि पापा पूछती हैं कि प्री टेस्ट को मेरी बात आ रही है आपको? अब आ रही है। डॉक्टर अब आ रही है। भाई थोड़ा सा रिपीट कर दें, बिकॉज आई थिंक आपकी आवाज थोड़ी बफर करी थी। हाँ हाँ जी। अब आप ना क्वेश्चन रिपीट कर दें, वो इंटरनेट कनेक्शन का मसला आ रहा है, मैं भी इस टाइम हॉस्पिटल के अंदर ही अभी ड्यूटी करके फारिग हो रहा था। चलें कोई बात नहीं। अच्छा, कोई पूछता है कि गाइटिन को किस तरह यूज करें, इसका मतलब हाउ टू यूज गाइटिन एंड अदर शॉर्ट बुक्स साइमल्टेनियसली, और उसको किस तरह गाइटिन को बेसिकली दिमाग में घुसाया जाए, बिकॉज इट्स सच अ लॉन्ग बुक। तो उसको किस तरह इफेक्टिव स्टडी की जाए उसकी। अच्छा, मजे की बात है, गाइडन जो है ना, मतलब लिखी जाएगा, बोली जाएगा। तो उसमें आपने सिर्फ ये करना है कि आपने अपने अ, बना लेना है रजिस्टर के अंदर फ्लो चार्ट्स। अच्छी चीज है, आराम से आपने फ्लो चार्ट ही लिखने होते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। हर बंदा ये प्रेफर करता है कि फ्लो चार्ट की फॉर्म में आप चीजें लेके चल रहे हो। यू कैन बिल्कुल। आप देख सकते हैं शेरवुड को, वो फ्लो चार्ट के फॉर्म में ना बहुत सी चीजें मतलब आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो बच्चे शेरवुड को देखें, फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में उसने सारा कुछ लिखा होता है। तो और इसी चीज को गाइडन के भी पॉइंट्स बना लें, और फ्लो चार्ट्स अगर बनाएंगे चीजें सिंपल होने लग जाएंगी, आपको समझ भी आएंगी, अगले टीचर को भी समझ आने लग जाएंगी और चीजें आसान होने लग जाएंगी। तो जब आपको फ्लो चार्ट बना होगा तो आपको पता है गाइडन में क्या बात कर रहा है, और दे वोंट बी एन इशू। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा जी, मनाहिल आई गेस मनाहिल पूछती हैं कि हाउ टू डील विद रफ स्ट्रेस। एग्जिस्ट करना है उसने, और इट्स नेचर। द थिंग इज कि आपने ना इसको एंजॉय करना है। हर 5 सालों में 5 दफा स्ट्रेस आना है, तो आप उसको ना एज एंजॉय सोचे यार, ये स्ट्रेस आना है, ये साल बाद जाके आना है। और लिटरली थर्ड ईयर के बाद हम आपस में डिस्कस कर रहे होते थे, यार यही तो दिन होता है जिसके अंदर स्ट्रेस आना होता है, यही तो दिन होता है जिसमें मजा आता है। आप उसको एंजॉय करें। रिटर्न थोड़ा सा एक होता है कि यार इसके अंदर, लेकिन हमारा जो होता है ना, आप जब भी हमेशा ऐसे ही होता है, ऐसे सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि सुबह के टाइम डिस्कशन कर रहे होते हैं, बुक्स पढ़ रहे होते हैं, टेंशन हुई होती है। तो इसको एंजॉय करें, इस मोमेंट को एंजॉय करें। और जब आप एंजॉय करने लग जाएंगे तो स्ट्रेस वैसे भी कम होने लग जाएगा। फ्रेंड्स के साथ रात को बात किया करें अपने। एक बंदा जो है, जब राइटर मोड पे बात, ये नहीं बात करनी कि आज कितना गाइडेंस पढ़ लिया है, कितनी फ्लैचेस पढ़ ली है, ये जरूरी नहीं है। राइटर नोट पे डिस्कशन करें, सिर्फ बात भी करेंगे, आप जो है ईज आउट होने लग जाएंगे, आपको जो स्ट्रेस होगा वो ऐसा ऐसा कम होने लग जाता है। इट्स नेचुरल। बिल्कुल अल्लाह ताला को याद करें, बहुत जरूरी है। अल्लाह जिक्र लाए बिल्कुल। तो आप जब भी परेशान हो, अल्लाह ताला से कहेंगे अल्लाह ताला जी ये परेशानी है, प्लीज हेल्प कर दें, तो आप यू विल फील रिलीव्ड। और ये मैंने बहुत दफा किया है, बहुत दफा ऐसे फील किया है यार अब नहीं हो रहा कुछ, बस हो गई है, तो अल्लाह ताला हौसला देने लग जाता है। डॉक्टर वलीद शम्स पूछते हैं हमसे कि डॉक्टर वलीद, व्हाई डिड यू डिसाइड टू गो फॉर मेडिसिन एंड व्हाई? आप बेसिकली आपने मेडिसिन क्यों चुना,
और क्या एक ऐसा पैशन था जिसकी विच वाज अंडरलाइंग थिंग जिसकी वजह से आपने मेडिसिन को चूज किया? मेडिसिन मैंने नहीं चूज किया था, मेडिसिन ने मुझे चूज कर लिया, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिखाया कि यार यही चीज है, यही रास्ता है जहाँ तुम्हें जाना है, और इसके अलावा कोई रोड्स नहीं है तुम्हारे लिए, ये एक प्लेन रोड है, इधर ही जाना है। तो बचपन से यही था। और फिर अम्मा अब्बा जब मेहनत वगैरह कर रहे होते ना, इंसान को फील होता है यार, अब अम्मा अब्बा ने एक चीज कह दी है, एटलीस्ट उनकी ये बात तो मान लें। तो स्टार्ट में पैशन नहीं था, लेकिन ये पता था कि यार बनना है तो डॉक्टर बनना है, और कुछ नहीं बनना। तो फिर ऐसा ऐसा पैशन डेवलप करने लग जाता है इंसान का, फिर एक सिंसेरिटी इंसान के अंदर आ जाती है कि अगर मैं इस चीज को परस्यू कर ही रहा हूँ तो आई आई एग्री। शुड ओन इट। अगर मेहनत कर रहा हूँ तो आई शुड ओन इट, मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो जब इंसान ओन करने लग जाएगा चीजों को, तो चीजें आसान होने लग जाएंगी। ओके डॉक्टर वलीद, किंजा हमसे पूछती हैं पास पेपर्स कर लूं तो पास हो जाऊंगी? दो दुआ ही कर सकते हैं। पास से बस ऐसे ही कुछ निकाल देते हैं, मैं अब ऑनेस्ट बात करूंगा, ऐसे ही कुछ निकल जाते हैं मोस्टली। लेकिन एमसीक्यूज का फिर मसला बनता है। और इवेंचुअली आपने वाइवास वगैरह भी देने हैं। चीट कोड ये है कि आप पास पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे देख लें, और उनको करें बुक से। अल्लाह का वास्ता है, पास पेपर में गलत भी दिया होता है, आंसर्स भी गलत हुए होते हैं कुछ। तो करने आपने बुक से हैं, पास पेपर्स के जो मेन जो चंक होता है ना, 80% एक सेम क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। गॉट तो इट। वो करें बुक लेकिन पास पेपर्स देख लें। करने बुक से हैं बस ये, प्लीज। अच्छा डॉक्टर वलीद, आई थिंक किंजा ही है, किंजा पूछती हैं कि एनाटमी को किस तरह रिवाइज किया जाए और इसको किस तरह, यस, एनाटमी को किस तरह रिवाइज किया जाए? एमएफबी के अंदर जरूरी है कि आप जो है ना अपनी पिक्टोरियल जो यू नो डॉक्टर वलीद, हमें आवाज नहीं आ रही थी तो प्लीज आप रिपीट कर देंगे? गाइस आप लोग इतने हाँ जी जल्दी हाँ जल्दी जी। अपने जो है एमसीक्यूज कह रहा हूँ मैं, क्वेश्चंस भेजें ताकि हम डॉक्टर वलीद से पूछें। डॉक्टर वलीद आप प्लीज रिपीट कर देंगे आप एनाटमी किस तरह हम पढ़ते थे और उसको किस तरह रिवाइज करना चाहिए? एमएफबी के अंदर होता है कि आपने जो पिक्चर्स वगैरह होती हैं सारी बनानी, प्रैक्टिस करनी है। द थिंग इज आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको अब एनाटॉमी में होता है मीडियल टू लेटरल क्या चल रहा है, रिलेशंस क्या है किसी चीज के। तो आप जब अपनी दिमाग में इमेजेस बनाने लग जाएंगे ना, और आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये चीज इतनी प्रैक्टिस हो जाती है इस चीज की कि आपको दोबारा खोलना नहीं पड़ रहा होता कि यार ये चीज मैंने लिखनी कैसे है। ड्राइंग आपने बनाई, प्रैक्टिस की होगी, तो आप कहते हैं अच्छा ये ठीक है, ये मीडियल है, ये लेटर है, दैट्स इट। तो आपकी चीजें आसान हो जाती हैं। एनाटॉमी में बहुत जरूरी है कि आप अपनी जो विजुअल मेमोरी है उसको स्ट्रॉन्ग करें, और उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। गॉट इट। आई थिंक बिकॉज विजुअल मेमोरी बहुत हद तक जो है वो काफी टाइम बाद तक रहती है एज कम्पेयर टू अगर आप किसी चीज को बाय वर्ड्स लर्न करें, बिकॉज बाउंड्रीज एंड फॉसाज एंड ऑल ऑफ दैट, जितनी वो विजुअली आप उसको याद करें तो वो ज्यादा बेहतर होता है। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड मैसेज फ्रॉम यू। अच्छा, मुस्तफा पूछते हैं कि, अच्छा एक सेकेंड, somebody is saying can we just go for first aid one, एक second I just need to pull it up. Can we just do first aid step 1 and step 2 instead of other books? I don't know. अब्बास अपना क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट करें, मेरे ख्याल से अगर तो ये ये के लिए बोल रहे हैं। अगर तो ये हमारी बेसिक्स एमबीबीएस के लिए है, स्टेप अप अच्छी बुक है, नो डाउट, उसमें सब कुछ ही है ऑलमोस्ट। लेकिन जो हमारा अनफॉर्चुनेटली जो एकेडमिक वाला सारा सीन चल रहा होता है, उसमें आप जो है ना सारा नहीं लिख सकते, और वो डिटेल्ड इतना नहीं जा रहा होता। वो कॉम्पैक्टफुली एक अच्छा आपका ओवरव्यू बड़ा अच्छा बना देता है। वो बाहर के अगर आपने एमएलई देना है या कोई और पेपर देना है उसके लिए अच्छा है, एफसीपीएस के लिए भी इवन अच्छा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे एमबीबीएस के अंदर अगर फाइनल ईयर की बात की जाए, तो उसके लिए सिर्फ आप अपने एडिशनली पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, लेकिन हमें बाकी बुक्स ऑब्वियसली आपको पता है कि पढ़नी पड़ती है। Got it. Thank you, Dr. Waleed. अच्छा, somebody is asking, I think फैजान is asking कि आप 12 बजे के बाद पढ़ते थे या 12 बजे के बाद पढ़ना चाहिए? What was your schedule जब आपके प्रॉफ्स हो रहे होते थे? तो were you a night person, were you a morning person, and how do you think कि कौन सी चीज आप करते थे वो ज्यादा बेनिफिशियल थी?
बाकियों के लिए मैं यही कहूंगा जिस तरह वो प्रेफर करते हैं, जो उनकी रूटीन है वो उसी को अडॉप्ट करें, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। मेरा ये था कि मैं कभी ऐसा भी होता था कि मैं नमाज पढ़ के, हमारे 4-5 बज जाते होते हैं, नमाज पढ़ के सो गया, 2-3 घंटे सो के फिर उठ के स्टार्ट कर दिया, या फिर रात को बीच में 3 या 2 बजे सो गया, सुबह फजर के लिए उठा फिर स्टार्ट कर दिया। तो मिक्सअप था। और दूसरी ये भी एक टेंशन होती है कि प्रॉफ के दिनों में आपको नींद का भी बहुत ज्यादा ख्याल करना पड़ता है। तो मेरी एंड पे ये रूटीन होती थी कि इस तरह अपने स्केड्यूल को एडजस्ट करूं कि मुझे उस टाइम ना हो कि मुझे नींद ही नहीं आ रहा हो और फिर मैं सुबह जो हूँ डिस्टर्ब हो रहा हूँ पेपर के लिए। बिल्कुल। अच्छा फैजान हमसे पूछते हैं कि इज स्लीप मोर इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द डे बिफोर प्रॉफ? मतलब कि कल आपका प्रॉफ है तो आज रात को सोना जरूरी है या नहीं? बहुत जरूरी है। आप अगर नींद नहीं पूरी करते तो आप फोकस ही नहीं कर सकते। आपने सारी चीजें पढ़ ली हैं लेकिन आपकी नींद नहीं पूरी, आप किस तरह फोकस कर सकते हैं? आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि यार मैंने क्या चीज किस टाइम करनी है। तो मेरे में तो जब भी कोई बच्चा देखता था जो सोया नहीं होता था, मैं कहता था कि इट्स बेटर कि आप 6 घंटे की नींद एटलीस्ट पूरी कर लो। आपने जो पढ़ा है वो भी सारा जाया चले जाना है। तो प्लीज अपनी नींद को फोकस करें, वो भी बहुत जरूरी है, वरना आप फोकस ही नहीं जब चीज पे कर सकेंगे तो आपने क्या लिखना है उधर जाके। ओके डॉक्टर वलीद, मैं एक और कमेंट लेना चाह रहा हूँ। इसमें किसी ने लिखा हुआ है, आई थिंक ऑन लिखते हैं कि ये रिकॉर्डिंग होगी बिल्कुल, ये एग्जामी मेडिकल के ऊपर, एग्जामी मेडिकल के इंस्टाग्राम के ऊपर हम ये लाइव जो है रिकॉर्डिंग सेव भी करेंगे। एंड आई थिंक डॉक्टर मोहसिन कैन कंफर्म इट कि हम इसको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर और हम इसको अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर और लिंक्डइन हैंडल के ऊपर भी शेयर करेंगे। सो यू गाइस डोंट वरी, दिस लाइव इज नॉट गोइंग एनीवेयर। आप लोगों के साथ ये खजाना यहीं पे रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। ओके। सुलेमान फरीदी पूछ रहे हैं कि हाउ टू गेट 30 मेडल्स। आपने 29 करे हैं तो वो 30 करना चाह रहे हैं, तो आप बताएं कि 30 मेडल्स किस तरह बनाए जाएं। पढ़ के ही हो सकते हैं। और लेकिन ये है कि आप जब आप अपने मेडल्स अचीव करना जरूरी नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोग कहते हैं हम आपसे ज्यादा लेंगे, मैं कहता हूँ बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। और बहुत अच्छी बात है कि लोग इस चीज को ऑन करें कि यार एक बंदा मेहनत कर रहा है ऊपर आया तो हमने इससे भी ज्यादा मेहनत करनी है। द थिंग इज कि जो मेहनत है वो जरूरी है, मेडल्स एक साइड पे, मेहनत जरूरी है। जब आप मेहनत करेंगे आप डेडिकेशन शो करें अपने प्रोफेशन के साथ। और हमें बहुत जरूरी है इस चीज की कि हम अपने प्रोफेशन के साथ जो भी हम काम कर रहे हैं उसका डेडिकेशन शो करें। तो अगर हमारी नीयतें अच्छी होंगी तो अल्लाह ताला हमें उसका फल भी बहुत अच्छा देता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, डॉक्टर वलीद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई थिंक मैं थोड़ा सा और आपसे पूछूंगा, देन वी विल डेफिनेटली लेट यू गो, बिकॉज आप भी थोड़े से आई थिंक टाइम रिस्ट्रेन में हैं। मुझे ये बताएं कि आप अपने आप को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं? डू यू थिंक आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं? और आप अगर फॉर एग्जाम्पल इंट्रोवर्ट हैं तो वो चीज आपको किस तरह हेल्प करती है इन एक्चुअली यू नो इन मेडिसिन एंड इन एमबीबीएस, या फिर वो चीज किस तरह आपको एक डिसएडवांटेज, और बेसिकली व्हाट्स योर पर्सनालिटी टाइप? मेरी इंट्रोवर्टी है और मैं बहुत शाय हूँ। और मुझे बड़ा स्टार्ट में जब इंटरव्यू स्टार्ट हुए तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा होता, तो मैं क्या बात करूंगा, मुझसे नहीं बोला जा रहा होता। तो इस चीज ने मुझे हेल्प भी किया है, लेकिन मुझे उसके डेफिनेटली कुछ नुकसान भी हुए हैं। एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, माइल्ड फॉर्म मुझे भी है। और मुझे एंग्जाइटी भी हर वक्त रहती है। तो इवन मेरे दोस्त मुझे छेड़ते रहते हैं तुम्हें जीएडी भी चल रहा है, तुम्हें ओसीडी भी चल रहा है। तो वो दिमाग में मेरे पीछे ये चीज है जो मुझे बहुत ज्यादा अफेक्ट भी करती है इन अ वे, कि अगर कोई चीज काम पे नहीं हो रही, कोई चीज टाइम पे नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, मुझे उस चीज की बहुत ज्यादा टेंशन होने लग जाती है। लेकिन इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये था कि मैं अपने काम जो थे सारे जल्दी करने लग जाता था। और पढ़ाई जो भी मेरा स्केड्यूल था मैं उससे आगे ही होता था, जस्ट बिकॉज की मुझे एंग्जाइटी थी कि यार ये चीजें होनी बहुत बहुत जरूरी हैं और मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। तो हेल्प भी किया और नुकसान भी हुए। और ये था कि जब आप इंट्रोवर्ट होते हो तो आप लोगों से ज्यादा मिलते नहीं हो, आपको ज्यादा टेंशन नहीं होती, आपका जो सर्कल होता है वो बाउंड होता है, कन्फाइंड होता है। तो इस चीज ने मुझे हेल्प भी किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा सर्कल था वो सारे एक्सट्रोवर्ट हैं और मैं इंट्रोवर्ट हूँ। और लेकिन उन्होंने इस चीज को जो है ना मुझे लेके चले कि ठीक है यू आर इंट्रोवर्ट, और प्रॉपर स्पेस और टाइम देते थे मुझे। बेसिकली जी जी। मैंने कहा आप
आपको एक स्पेस दी इंट्रोवर्ट रहने की, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल Exactly. forces you to become extrovert or forces you to become introvert depending upon their liking, and it's a very positive thing about your friends. Exactly. मतलब वो इस चीज का मुझे मजाक उड़ा के कहते थे कि आज तो तुमने जल्दी चले जाना है, तुम्हारा तो ये टाइम नहीं है, तुमने इसके बाद तो वैसे घर चले जाना, तो चले जाओ, पहले ही चले जाओ। तो मुझे उनको तरला नहीं कहना पड़ता था कि यार अच्छा, मुझे कोई बहाना नहीं लगाना पड़ता था, और वो नेचुरली मुझे कहते थे कि भाई जा प्लीज, कुछ नहीं होता। वलीद, काशिफ हमसे पूछ रहे हैं कि मैं सब भूल जाता हूँ, मैं क्या करूँ? ये तो मेरे साथ भी मसला है, आप प्लीज उसके ऊपर कुछ बताइए। अच्छा, इसमें ये होता है आप प्रैक्टिस करें और लिख के प्रैक्टिस करें। मैंने ये चीज नोट की है कि आपको दिमाग में चीजें भूलने लग जाती हैं, लेकिन आप जब आप लिखने बैठ जाते हो ना, लिख के प्रैक्टिस करते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो, इवन एक टाइम ऐसा आता है कि आप लेटे होते हो, सोए होते हो, और आपको चीजें आ रही होती है दिमाग में, और आप कहते हो मुझे पेन दे दो, मैं लिख लेता हूँ सारी चीजें। गॉट तो ये इट। स्पेशली थर्ड ईयर एक ऐसा साल होता है जिसके अंदर बच्चे बहुत परेशान होते हैं। मुझे भी बहुत मसला हुआ था। फार्मा आपके लिए मुश्किल होती है, फोरेंसिक मुश्किल होती है, माइक्रो मुश्किल होती है, बहुत एक नया सा चेंज आ रहा होता है। तो उसमें बहुत जरूरी है आप दोबारा रेपिटेशन करें और लिख के प्रैक्टिस करें। जब आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको एक दिमाग में वैसे ही बैठने लग जाती है चीजें, और आपको उसके तो लिखने बैठने में और हमने कर लेना है। तो भूलने वाली जो चीज है उसके लिए आप रेपिटेशन बहुत जरूरी है, और लिख के प्रैक्टिस करें, और विजुअल मेमोरी अपनी स्ट्रांग करें, तो वो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। गॉट इट डॉक्टर वलीद, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर वलीद, एक और क्वेश्चन हम दो चार और हम करते हैं, फिर निकलते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये है कि आपके मैंने आपके डिफरेंट इंटरव्यूज सुने, और सारे इंटरव्यूज में आपने अपने फ्रेंड्स को एक्नॉलेज किया। तो आपको क्या लगता है कि एक पॉजिटिव सर्कल होना कितना ज्यादा जरूरी है? और एक पॉजिटिव सर्कल होता है तो बड़ी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो हाउ डू यू सी कि हम जब मेड स्कूल में फ्रेंड्स बनाए तो उनसे किस तरह इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें और एक पॉजिटिव स्पेस क्रिएट करें अपने अराउंड, ताकि दूसरे भी फिर पॉजिटिव हो जाएं? अच्छा, इसमें यह है कि बहुत जरूरी है कि आप उन लोगों को, आप जब इनर सर्कल जाते हैं ना, तो आपको आइडिया होने लग जाता है कि यार कौन लोग ऐसे हैं जो वाकई दिल से खुश होते हैं मेरी खुशी के अंदर। बहुत कम लोग होते हैं, डेफिनेटली बहुत कम लोग होते हैं। आपको आइडिया हो जाता है कि आप कुछ, आपके बहुत क्लोज लोग होते हैं, लेकिन वो आपसे वैसे कहते हैं कि हम खुश हैं, लेकिन उनके चेहरे पे जो खुशी है वो उससे अंदाजा हो जाता है। तो वो जो कहते हैं ना, बिल्कुल। स्नेक ऑल दैट, तो ये रियलिटी है। और बिल्कुल। आपने सिर्फ ये देखना होता है कि कौन दूसरा बंदा दूर से बंदा यार इतनी खुशी से देख रहा है मुझे, मेरी खुशी पे बहुत खुश है। तो दैट इज अ थिंग, उस चीज को कैच करें और फिर दोस्तियां लेके चलें। वो दोस्त होंगे, जाहिर सी गॉट बात इट। है अच्छा आप। डॉक्टर वलीद, आपका फ्यूचर का क्या गोल है? आप किस चीज में स्पेशलाइज करना चाह रहे हैं?